Hello guys, now let's start the topic, most important topic, potential difference. Okay, what is potential difference, how it describe? We know that what is the essential of potential difference, what is the necessary condition of potential difference. For this we have give a beautiful example. See this, the heat flow from higher temperature body to the lower temperature body. Yeah, heat, higher temperature to low temperature. Similarly, the water flow from higher height to the lower height, right, water. Similarly the charge flow from the higher potential to the lower potential, right. That is the necessary condition of the potential difference, because if the two bodies have the same potential difference, the charge cannot flow. If we want the charge flow from one point to another point, from one place to another place, so that is most important that the potential difference of the two bodies is one is higher and one is lower, right. Suppose the potential difference, there are two houses, the charge flow from house A to house B, right. The charge flow from house A to house B. How many charge flow? For the definition we say that unit positive charge plus Q. Unit positive charge flow from A to B, right, from A to B, right. Then the amount of work done, because when the body moving from one place to another place, when we replacing body from here to there, then the amount of work done, right, then the amount of work done, anything we replace from higher to lower, or from one place to another place, from here to there is a work done, right. तो हम जब फ्लो कराएंगे, चार्ज को फ्लो कराएंगे, जो भी कुछ चार्ज को फ्लो कराएंगे, तो चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा, तो उसको फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए कहीं ना कहीं क्या लगेगा, वर्क डन होगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन होगा, राइट. तो वर्क होगा, तो उसी वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. डेफिनेशन सिंपल वर्ड में बताएं, टू मूविंग अ यूनिट positive charge from one point to another point, then the amount of work done is called potential difference. That. Similarly, you can say that the potential difference is denoted by delta V, amount of work done, what is this, W, and unit positive charge means plus 1 coulomb, that is called Q. Potential difference equal to work done upon unit positive charge, right. This is the formula of the potential difference, delta
V equal to W upon Q, or electric potential is equal to amount of work done to moving a unit positive charge. Definition is direct clear. You can say that to moving a unit positive charge from one place to another place, then the work done, the amount of work done is called potential difference, right? यूनिट की बात कर लें इसकी हम, तो वर्क का क्या होता है, जूल, राइट? वर्क का क्या होगा, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कुलम। चार्ज का क्या होगा, कुलम, जूल पर कुलम, J upon C, that is called volt. What is this? That is called volt. Okay? Potential difference is required because charges are flowing. There is the two bodies where potential difference are same, then we can say that no charge flow. Suppose that the two bodies, that a hot body and a cold body contact to each other, then hot body, the heat flow from the hot body to the cold body, unless the both bodies are in same temperature. तब तक उसमें से हीट फ्लो करेगी जब तक कि दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अगर दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे तो हीट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप चाय देखा आपने, चाय या आपने फूड देखा, खाना देखा है, जब उसको निकालते हैं चाय को तो उससे भाप निकलती है, वो हीट वो फ्लो करती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस चाय के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है, राइट? हमने खाना बनाया, हमने चाय बनाया तो 100 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, राइट? तो 30 और ये 170 का डिफरेंस हो रहा है। इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए इस चाय से हीट फ्लो करके एटमॉस्फेयर में आएगी। कब तक आएगी? चाय से आप देखो, आप खुद वॉच कर देखोगे कब तक उससे भाप जो होती है, स्टीम भाप जो होती है, कब तक निकलती रहती है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने? नहीं, कुछ टाइम के लिए। कितने टाइम तक लिए? जब तक कि चाय इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए, राइट? तो जैसे ये फ्लो करने के लिए, हीट को फ्लो करने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, तब हीट फ्लो करेगी। सिमिलरली वाटर को देख लीजिए, एक हाई लेवल पे वाटर हो, एक लो लेवल पे वाटर हो, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हाई लेवल से वाटर फ्लो करते हुए कहाँ जाएगा, लो लेवल पे, और जैसे ही दोनों का लेवल क्या होगा, इक्वल होगा, तो वहाँ से वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। उसी प्रकार ठीक उसी तरह से जब 2 बॉडी हमारे पास होती हैं, दोनों बॉडी में से एक बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस, एक बॉडी का जो वोल्टेज है वो लो होगा और दूसरी बॉडी का वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, तब जाकर के हीट चार्ज फ्लो करता है। और हमें चार्ज फ्लो कराना है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हमको क्या करना है, चार्ज को फ्लो कराना। हमें यहाँ से लाइट वहाँ ले जानी है, वहाँ से लाइट वहाँ ले जानी है, तो ये लाइट तभी फ्लो करेगी, ये करंट, ये जो करंट फ्लो कर रही है, चार्ज फ्लो कर रहा है, ये तभी फ्लो करेगा जब एक बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे बॉडी से क्या हो, लो हो या फिर क्या हो, हाई हो। तो ये हाई से लो की तरफ जाता है, जैसे ये हाई से लो, ये हाई से लो, इससे ये भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस तक जाता है। तो इसी चीज़ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि 2 बॉडी में डिफरेंस होना चाहिए, राइट? दोनों बॉडी का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तभी हीट क्या करे, तभी क्या करेगा, ये चार्ज फ्लो करेगा। जिस प्रकार से हीट फ्लो की, जिस प्रकार से आपका वाटर फ्लो किया। डिफिनीशन क्या बोलेंगे आप, सिंपली वर्ड में आप डिफाइन करोगे। देखिए हमने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हियर टू देयर, to moving a unit positive charge from one point to another point, then the net work done, then the amount of work done is called electric potential difference or potential difference. Potential difference is denoted by delta V, amount of work done is denoted by W, charge is denoted by Q, right? That is delta V is equal to W by Q. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट की बात कर ले, अगर हम एसआई यूनिट की बात कर लें तो हमें पता है वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, चार्ज की कूलम्ब होती है, जूल पर कूलम्ब, J by C, जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को एक स्पेशल नाम देते हैं क्या, वोल्ट। क्या देते हैं, वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, दैट इज द वोल्ट। Now we also
व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स टू बॉडीज फ्रॉम वन टू अनदर, राइट? तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी को वी बी, फाइनली ना यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव किया कहाँ पर? बी पर, तो इनिशियल फाइनल, तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। ये देखिए, इसको जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस टाइम डिफरेंस ना, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, डिस्टेंस डिफरेंस डेल्टा एस, S2 माइनस S1, वेलोसिटी डिफरेंस V2 माइनस V1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली वोल्टेज डिफरेंस, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज VB माइनस VA, एंड वर्क डन A टू B, चार्ज को A से मूव करा रहे हैं कहाँ पर? B की तरफ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ सम डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। डिफरेंस क्या? उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ क्या निकालेंगे? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात करें, पर्टिकुलर इस घर की बात करें कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक घर की बात करें कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं हम? लेट करते हैं, एज्यूमिंग कि इनफाइनाइट पे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम कहाँ लेके आ रहे हैं? जिसको हम लेके आ रहे हैं जहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, राइट? तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जहाँ पहले फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट था, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दोनों पॉइंट फिक्स थे, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं पता हमें कहाँ से आ रहा है, वो नहीं पता, तो इसको इनफाइनाइट हम मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट से अगर ये फ्लो करते हुए डेड पॉइंट पे आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, राइट? दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल एक वर्ड का है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू डेड पॉइंट, ये चीज़ होंगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डेड पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डेड पॉइंट, कहाँ पर है? इन्फिनिटिव, या इन्फिनिटी से इसको मूव करके कहाँ ला रहे हैं? डेड पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर जगह पर, एट अ पॉइंट हमें निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू W बाई क्यू, सेम फार्मूला। इसको और डिटेल में लिखे, जैसे उसमें लिखे थे हम, तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या यहाँ से चला और यहाँ पर आया, तो फाइनल हो गया VA, इनिशियल क्या होगा? V इनफाइनाइट इक्वल टू W इन्फिनिटिव टू A अपान Q। ओके, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, इन फिजिक्स V इनफाइनाइट इक्वल टू 0, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को क्या मानते हैं? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट फिजिक्स का ये ट्रू है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? VA माइनस 0, दैट मीन्स VA, ओनली VA इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपान Q। यूनिट की बात करें तो वही होगा वोल्ट, जैसा पहले था वोल्ट, जूल पर कूलम वोल्ट, राइट? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में मामूली डिफरेंस है, उसमें फ्रॉम व्हेन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डेड पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू डेड पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, दोनों की जो फार्मूले हैं नियर अबाउट टू सेम है, उसमें डेल्टा V से डिनोट करते हैं या फिर सीधे, और इसमें ओनली V से डिनोट कर देंगे। यूनिट की बात करें तो इसका जूल होगा और उसका क्या हो जाएगा?
जूल पर कूलाम और उसका भी होगा आपका जूल पर कूलाम, दैट मीन्स वोल्ट। ओके, हियर डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनर डिफरेंस, potential difference, the two quantities are known, A and B, from where charge flow from there, that is A to B. Unit positive charge delta Q, work done A to B. The formula delta V is equal to W by Q, that is VB minus VA is equal to WBA B to A upon Q. Okay, electric potential at a point, there is one place are known, other is infinitive. I don't know that the unit positive charge moving from infinitive to that point, work W infinitive to A, right? Formula VA minus V infinitive equal to W infinitive to A upon Q, that is infinitive. At infinitive the voltage is 0, so 0 putting this is VA is equal to W by Q. The unit in those conditions are same, volt or joule per coulomb or volt, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो जूल इंटू कूलाम इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा ना, तो डिफिनीशन भी सेम है, बस मामूली सा डिफरेंस है। To moving a unit positive charge from one point to another, then the work done is called electric potential difference. Unit positive charge from one point to another, electric potential difference. To moving a unit positive charge from infinitive to that point, infinitive electric potential at a point. एक पॉइंट की डिफाइन करना है तो इन्फिनिटिव रखिए, और 2 पॉइंट पर डिफाइन करना है तो क्या रखेंगे आप, इसको रखेंगे, आपको ये रखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो अभी इसकी जस्ट बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स बताते हैं, और न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, रिपीट बार बार इसको देखिए, देखने के बाद जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा उसको आप कंसल्ट करिए।